तरफा मुनाजरे का अंजाम क्या है। ये मैं इसको एक तरफा इसलिए कहूँगा कि आपने भी इसको गलत एक्सेप्ट किया है और उन्होंने भी जवाब दावा ना देकर समझो इसको डिसाइड ही नहीं किया कि ये कोई मुनाजरा हो रहा है। आप ऐसा कर लेना, अगर आपको ये लगता है कि ये यक तरफा फतह होने जा रही है हमारी, या हो रही है, शुरू हो गई है, आपके पास ये नज़ीर साहब बैठे हैं, आप उनसे सिर्फ इतना मनवा दें जो आपने बात कही है कि दूसरी तरफ से अगर जवाब दावा नहीं आया, उनका कोई मौक़िफ़ वो सामने नहीं पेश करना चाहते कि वो यहाँ क्या करेंगे, तो वो कमज़ोरी दिखा रहे हैं। सिर्फ इतनी बात इनसे मनवा दें। जी नज़ीर साहब क्या कहते हैं आप? वैसे हाँ जी, नज़ीर साहब बोलें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वालेकुम सलाम। जी अच्छा जी, आखिरी फैसले पे क्या हो रहा है जी? मुनाज़रा हो रहा है। तुम सुते सो पर होना आराम है क्यों जी नज़ीर साहब, होना आराम है। होई ना, पिछली मंजिल से सुते सो तुसी। नहीं मैं कह अपने आप ਨੂੰ जिंदा रखने का है एक बहाना, बस नहीं जी गल और की है। वरना वरना ਅਸੀਂ ਮਰ ਚਲੇ ਸਾਂ। वरना ਤੁਸੀਂ ਤੇ वही मतलब है कि ਹਾਂ ਜੀ, आखिरी सांस में ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए ਜੀ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਸਾਂ। ਪਏ ਲੋ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ। आखिरी सांस चल रहे सन, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ थोड़ी ऑक्सीजन ला ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ मोहतरम, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ये मुखालफत ईमानदारी के तरीक से नहीं, यूं मुखालफत नाजायज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। चैलेंज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ टाक मास्टर साहब। अच्छा, ਤੇ ਚੈलेंज ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ कि हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते कि हमारा इस पे मौक़िफ़ क्या है। ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਈਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮੈਦਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ कुछ भी नहीं, सारा बेड़ा भर छड़ना तुसां। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसले का जवाब दे देना 4 मिनट ਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ 4 ਮਿੰਟ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। 4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। 10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ हाँ जी चलो जी जज़ाकल्लाह वो है जी कि मौलाना सनाउल्लाह साहब दे मुबालगा करने तो इनकार ऐसी एतराज़ मुखालफीन जेड़े एतराज़ कर रहे हैं ना बाज़ मुखालफीन अहमदियत की तरफ से कहा जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने बद्दुआ की थी कि खुदा मुझ में और मौलवी सनाउल्लाह में फ़ैसला कर दे और झूठे को सच्चे की ज़िंदगी में हलाक कर दे और इस दुआ के मुतालिक ये भी ज़ाहिर किया कि मुझे इल्हाम हुआ है उजीब दावत दाए दान लिहाजा मिर्ज़ा साहब का मौलवी सनाउल्लाह साहब से पहले वफात पा जाना उनके अपने दावे में झूठे होने की दलील है तो सुन लो जी है तो सवाल सी ते जवाब सुन लो जड़ा इहदा जवाब की है वाज़ेह है कि जिस ख़त की तहरीर का ऐसे मुअतरज़ीन जिक्र करते हैं वो इससे पहले बयानात के सिलसिले के लिहाज से दुआए मुबाले का मसूदा थी ना कि यकतरफा दुआ क्योंकि इसमें सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक अल्लाह ताला से ये फ़ैसला चाहा गया था कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो इसलिए इस ख़त के बाद जो ख़त मौलवी सनाउल्लाह साहब की तरफ लिखा गया था इसका उन्वान मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फ़ैसला करार दिया था ना कि मौलवी सनाउल्लाह साहब के मुतल्लिक आखिरी फ़ैसला आखिरी फ़ैसला बदरिया बद्दुआ इस्लाम में मुबाले की सूरत में ही होता है जिसमें दूसरे फरीक की मंजूरी और उसकी तरफ बद्दुआ का होना ज़रूरी होता है मौलवी सनाउल्लाह साहब ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस ख़त को अपने अखबार अहले हदीस 26 अप्रैल 1907 में शाया करके इसकी मंजूरी से इनकार कर दिया लिहाजा ये यकतरफा तहरीर अब मौलवी सनाउल्लाह साहब के इस बयान करदा तरीक फ़ैसले को मंजूर ना करने की वजह से हुज्जत नहीं रही लिहाजा इतराज़ बातिल है इस ख़त का मजमून ये है मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फ़ैसला बाखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब अस्सलामु अला मुनत्तबल हुदा मुद्दत से आपके पर्चा अहले हदीस मेरी तकजीब तफसीक का सिलसिला जारी है हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चे में मरदूद कज़ाब दज्जाल मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि ये शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दज्जाल है और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा मगर चूंकि मैं देखता हूँ कि मैं हक के फैलाने के लिए मामूर हूँ और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं और मुझे इन गालियों और उन तहमतों और उन अल्फाज से याद करते हैं कि जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि अक्सर औकात आप अपने हर एक पर्चे में मुझे याद करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी में हलाक हो जाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की उम्र कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है और इसका हलाक होना ही बेहतर होता है ता खुदा के बंदों को तबाह न करे अगर मैं कज़ाब मुफ्तरी नहीं हूँ और खुदा के मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ हूँ और मसीह मऊद हूँ तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि सुन्नत अल्लाह के मुवाफिक आप मुकज़्ज़बीन की सज़ा से नहीं बचेंगे बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है जैसा ताउन हैज़ा वगैरह मोलक बीमारियां आप पर मेरी ज़िंदगी में ही वारिद ना हुई तो मैं खुदा की तरफ से नहीं ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेशनगोई नहीं बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फ़ैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक बसीर व कदीर जो अलीम व खबीर है जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ़ है अगर ये दावा मसीह मऊद होने का महज मेरे नफ्स और इफ्तरा से है और मेरे तेरी नज़र में मुफसिद और कज़ाब हूँ और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है तो है मेरे प्यारे मालिक मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर लो जी 4 मिनट का कहा था इनको 5 मिनट दिए गए 12 मिनट हो गए 7 मिनट से ये शुरू हुए थे तो अब इनकी बात का जवाब जहाँ से ये पढ़ रहे हैं मैं किताब भी बता सकता हूँ कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं
اور وہ لفظ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو اس کے بعد ان کے زبان پر آنے والے تھے، وہ سارے الفاظ ہمیں زبانی یاد ہیں۔ یہ اشتہار پڑھ رہے ہیں 15 اپریل 1907 والا، اور یہ ہمیں زبانی یاد ہے۔ اس کے آخر پہ کیا لکھا ہو وہ بھی ہم سے پوچھ لو، شروع میں کیا لکھا ہو یہ بھی ہم سے پوچھ لو، لیکن جو تین باتیں میں نے ان کی نوٹ کی ہیں، ٹاک ماسٹر صاحب آپ موجود ہیں نا، ان ہاں جی تین میں باتوں کا جواب لیجئے گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ دراصل ایک مباہلے کا اشتہار تھا مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ۔ یہ جو مضمون چھاپا مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، یہ نہیں کہا مولوی ثناء اللہ کے متعلق، بلکہ یہ کہا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مباہلے کا اشتہار تھا۔ بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ مرزا صاحب کا فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چاہا۔ رہی بات یہ کہ یہ مباہلے کا اشتہار تھا، لو جی سارا ان کو کہیں کہ یہ اشتہار پڑھ لیں آرام سے اکیلے بیٹھ کے، اس میں مباہلے کا لفظ لکھا ہوا دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے اس کو مباہلہ کہا ہو۔ 2-3 صفحوں کا اشتہار ہے، اگر اس میں لفظ مباہلہ لکھا ہوا دکھا دیں، منہ مانگا انعام یہاں پر نذیر صاحب کو دیا جائے گا، بلکہ وہ 300 یورو جو ان سے آج سے 2 سال پہلے ہم نے جیتا تھا وہ ان کو واپس کر دیں گے، ان سے لیں گے بھی کچھ نہیں، ان کو وہ 300 یورو ان کا واپس کر دیں گے جو ان سے لیا تھا، صرف یہ مباہلہ لفظ دکھا دیں۔ پورے اشتہار میں سے لفظ مباہلہ تو دکھا نہیں سکیں گے۔ اگلا چیلنج سنو، 15 کال کر عبداللہ، 1 منٹ میں گل پہ کرنا ہے اس موبائل تے نہ کر دوجے کال کر لے، 1 منٹ ہولڈ رکھ عبداللہ، یوسف بھائی نے عبداللہ نے روکنا، کالاں کرنا لگے، کوئی گل ہوگی ادھر۔ بات یہ ہے اس اخبار میں، اس اشتہار میں تو مرزا صاحب نے لفظ مباہلہ نہیں لکھا، اس کے بعد مرزا صاحب 11 مہینے 10 دن زندہ رہے۔ کیا مرزا صاحب نے ان 11 مہینے 10 دنوں میں کبھی لفظ مباہلہ اس اشتہار کے بارے میں استعمال کیا کہ میں نے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ کیا ہے؟ دکھا دیں۔ 11 مہینوں مرزا صاحب مسلسل لکھتے رہے، بولتے رہے، چشمہ معرفت کتاب لکھی، حقیقت الوحی کتاب لکھی، برائن احمد عیسیٰ پنجم لکھا، اخبار میں روز بیان چھپتے تھے، ریویو آف ریلیجن میں چھپتے تھے، اس میں البدر الحکم میں ان کے ملفوظات چھپتے تھے۔ 11 مہینے 10 دن مرزا صاحب زندہ رہے، انہوں نے کبھی بھی اس کو مباہلہ نہیں کہا۔ لیکن نذیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے قاضی نذیر لیل پوری کی پاکٹ بک کھلی پڑی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مباہلے کی تحریر تھی۔ بھائی مباہلہ تھا، کبھی مرزا صاحب نے اس کو مباہلہ کہا ہے زندگی میں؟ نہ تو اس اشتہار کے اندر کہا، نہ اس کے بعد کہا، تو آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولا کہ یہ مباہلے کی تحریر تھی؟ پہلی بات تو یہ، اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے، لکھ لیں، لکھوا لیں کاغذ لے کر، کبھی بھی نہیں جواب دے سکتے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے مسترد کر دینے کی وجہ سے یہ اشتہار، یہ دعا، یہ ختم ہو گئی، کیونکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ ادھر آئے دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اگر یہ بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہو کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ نے تو میرا مباہلے کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا، تو اب تو ختم ہو گیا اشتہار۔ 11 مہینے 10 دن زندہ رہے، کبھی مرزا صاحب
आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है। ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। 3 ਵਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਘੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਪੰਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਖੁੱਲਾ ਚੈलेंज है इंशाल्लाह। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। साल हर साल तो ये गल्लां कर रहे हैं, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਈ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਪਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਬਾਹਲਾ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਬਲਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ इंतज़ार करते रहे कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की मौत आएगी, हम खुशी का डंका बजाएंगे, फतह का डंका बजाएंगे। लेकिन 11 महीने 10 दिन के बाद जब मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर कादियान चला गया तो मिर्जाइयों की मौत वाक़या हो गई। फिर ये बातें घड़ी गई कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने तो 26 अप्रैल 1907 को इस इश्तिहार को मुस्तरद कर दिया था। ये बात पहले क्यों नहीं कही? 11 महीने 10 दिन ये बात नहीं कही कि तुमने तो मुस्तरद कर दिया था। 11 महीने 10 दिन उन्होंने इंतज़ार किया है। मुस्तरद करने की भी मैं बात सुनाऊंगा कि वो मुस्तरद कैसे की है, उसकी एक पूरी बैकग्राउंड है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस इश्तिहार पर 7 एतराज़ात लगाए थे कि इस इश्तिहार में मिर्ज़ा साहब ने देखो क्या क्या झूठ बोला है, क्या क्या दजल किया है, क्या क्या हेरा फेरियाँ की हैं। हाँ, ये बातें लिखी हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, लेकिन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का तो मिर्ज़ा साहब ने खुद उनको फ्री हैंड दे दिया था ना कि बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहें इसके नीचे लिख दें, 7 एतराज़ करें या 107 एतराज़ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहें इसके नीचे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये बात तो मिर्ज़ा साहब ने इस इश्तिहार के आखिरी अल्फाज में लिखी है कि जो चाहें लिख दें। तो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने 7 एतराज़ लगाए, भले 107 लगाते, कबूल करते या मुस्तरद करते। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का इससे कोई लेना देना नहीं था कि भाई उन्होंने कबूल करना था तो ये कबूल। मिर्ज़ा साहब ने ये दुआ खुदा से की है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ की है कि या अल्लाह मैं तेरी जनाब में मुल्तजी हूँ, मेरा और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का फैसला कर दे। अगर मैं झूठा हूँ मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे, अगर वो झूठे उन्हें मेरी ज़िंदगी में मार दे। तो ये तो कोई बात बनती नहीं ना जो आप कर रहे हैं। 12 बात ये है कि ये
कभी भी मिर्ज़ा साहब ने नहीं कहा कि ये मुबाहले वाला इश्तिहार मनसूख हो गया है, बल्कि एक ऐसी बात मैं आपको बताने लगा हूं जो आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। ये 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार छापा, इसके 6 महीने बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मिर्ज़ा साहब का बेटा फोत हो गया, मुबारक अहमद। जब मुबारक अहमद फोत हुआ तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखा अपने रसाले में कि ये उसका नतीजा है जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा था, ये उसका नतीजा है, उनका बेटा फोत हो गया। क्या फिर भी नहीं मिर्ज़ा साहब को कहना चाहिए था कि मौलवी साहब आपने तो उस इश्तिहार की तहरीर को, मेरे मोबाइल के चैलेंज को नामंजूर करके तो वो तो बात ख़त्म कर दी हुई है, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया है तो वो उस वजह से मेरे पर ये नाजल हुई है, उस तहरीर की वजह से, उस इश्तिहार की वजह से। फिर भी मिर्ज़ा साहब ने नहीं जवाब दिया। हाँ, ये जवाब दिया कि लोग ये कहते हैं, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस तरह की बात कही है, लेकिन ये नहीं कहा मिर्ज़ा साहब ने जो आज मिर्ज़ाई कह रहे हैं कि ये इश्तिहार मुस्तरद कर दिया था, ये नहीं कहा। वो कहते हैं ना कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, इन मिर्ज़ाइयों को अब ये सूझी है बात। हकीकत ये है कि ये तो मिर्ज़ा साहब को भी नहीं सूझी कि उनके बेटे के मरने पर इतना बड़ा ताना दिया गया, फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि ये इश्तिहार मुस्तरद हो गया है। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, 11 महीने 10 दिन ओ मिर्ज़ाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मुरीद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की दीवार से जाके कान लगा के सुनते रहे हैं। इस दौरान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बाजू में दर्द होगी। उस ज़माने में जब दर्द होती थी ना, बाजू में कोई मसला हो जाता था इस तरह का, तो वो पछ लगाते थे, वो सिंगी लगाना या वो खून निकालते थे हकीम जो हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बाजू में इतनी शदीद दर्द हुई कि वो चारपाई से नहीं उतर सकते, हिल नहीं सकते थे, हिलते थे तो तराटें पड़ती थी। अब अमृतसर में शोर मच गया, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी बहुत सख्त बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं, पता नहीं बचते भी नहीं कि नहीं बचते। इन मिर्ज़ाइयों ने मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी अलैहि रहमा के मकान की दीवार के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिशें की हैं कि अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, मौलवी सनाउल्लाह साहब फोत हुए कि नहीं हुए। 11 महीने ये कान लगा के सुनने की कोशिश करते रहे हैं कि अभी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी फोत होंगे, अभी हम डंका बजाएंगे, अभी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी फोत होंगे, अभी हम डंका बजाएंगे। लेकिन 11 महीने 10 दिन बाद जब ये इजराइल जिसके बारे में ये इंतजार कर रहे थे कि अमृतसर जाएगा, वो अमृतसर जाने की बजाय कादियान आ गया, बल्कि लाहौर आ गया, तो मिर्ज़ाइयों ने अल्लाह ताला के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में कुरान में आता है ना, अबू जहल के इसी तरह के मामले के बारे में, इन तस्तफ्तहू फकद जाकुमुल फतह। तुम सवाल कर रहे थे ना, ये रहा जवाब उसका। तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, ये रहा फतवा हमारा। आसमान से जिस तरह फैसला आया अबू जहल के बारे में, जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आया, इन मिर्जाइयों ने उसको जुटला दिया। इतनी सी बात है, वरना ये 11 महीने 10 दिन इंतजार करते रहे नतीजे को देखकर, जिस तरह कैंडिडेट इलेक्शन का नहीं कहता टाक मास्टर साहब, धांधली हो गई है धांधली। जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक वो कहता है इलेक्शन सारा मैं जीता हुआ हूं, मेरे हक में जा रहा है, पोलिंग भी हो जाती, कहता है मेरे हक में। जब रिजल्ट शाम को आता है तो कहता है धांधली हो गई है, इन्होंने फलां जगह हेराफेरी की, इन्होंने फलां पोलिंग स्टेशन पे बदमाशी की, फिर उसको वो बातें याद आती, सारा दिन कहता है मैं जीता हुआ हूं। ऐसे ही इनके साथ हुआ, 11 महीने 10 दिन तक ये इंतजार करते रहे। जब मौत का फरिश्ता इनकी मौत लेकर आ गया तो फिर इन्होंने बात ही दूसरी करनी शुरू कर, झूठ बोलना शुरू कर दी। जी टाक मास्टर, मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि आप बताएंगे कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसके जवाब में क्या लिखा था। हाँ वो मैं बताता हूँ, वो 7 पॉइंट्स हैं और उनकी एक बैकग्राउंड है, वो पूरी बात मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बगैर बैकग्राउंड के सिर्फ उनकी तहरीर पहले बता दें। वो ऐसे समझ नहीं आएगी ना तहरीर,
نہیں، اگر انہوں نے لکھی ہے تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے لکھی ہے نا، آپ ہاں کی وضاحت تو وہاں پر شائع نہیں ہوئی نا. جی چلے میں بتا دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، 5 منٹ دے دیں، میں نا گاڑی کا لوڈ لے لوں، میں 5 منٹ بعد ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. السلام علیکم. میں چونکہ جاب پہ ہوں تو عمر بھائی یوسفی بھائی ادھر ہی ہیں، یہ گفتگو کریں. باقی یہ ہے کہ ٹاک ماسٹر صاحب خود بھی تھوڑی تحقیق کریں، نیچے میسج پڑھ کے نا مرضیوں کے، تو یہ نہیں ہے کہ کاپی کر کے آپ وہاں پہ نقل مار کے پوچھنا شروع کر دیں. تو ساری باتیں مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پہ کرنی چاہیے، ویسے تھوڑی جتنی کر دی ہے نا میرے خیال سے تو یہ کافی ہے. تو آپ انتظار کریں، تجسس رہنے دیں. تو عثمان بھائی، دیکھیں پھر انشاءاللہ بات مسیح یہ جون ہے کو کہ ہوتا ہے کیا. نیچے لوگ کیا لکھ رہے ہیں میں اس کو عموماً نہیں دیکھتا. میں خود یہ انتظار کر رہا تھا کہ امرتسری نے جواب میں کیا کہا تھا. ویسے تو جو کچھ پڑھا ہے اس اشتہار میں وہ تو مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک بد دعا ہے اس کے لیے. اور یہ بھی آخر میں کہا گیا کہ اب فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا تو دوسرا اس کو ڈینائی کرے یا ایکسیپٹ کرے، دونوں صورتوں میں وہ فیصلہ اللہ ہی کا چلنا چاہیے. ٹاک ماسٹر صاحب مختصر سا، تو باقی عامر بھائی مناسب سمجھیں گے تو وہ بتا دیں گے. مختصر یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اس اشتہار کے اندر دجل دیا، اللہ کی طرف بات منسوب کی، اور یہی جو ابھی پہلے بات چل رہی تھی کہ جھوٹا وہ سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ معیار قرار دیا. یہ معیار نہیں ہے. اس کا رد کیا ثناء اللہ امرتسری نے اور قرآن کی آیات پیش کی کہ قرآن کچھ کہتا ہے، مرزا صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے یہ اشتہار لکھ کے کہا کہ آپ بھی میری یہ جو تحریرات ہیں اس کو اپنے اخبار میں شائع کر دیں. لیکن یہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال یعنی کہ 11 مہینے کم و بیش ایک دن بھی انہوں نے ثناء اللہ امرتسری کے وہ جو بات تھی اس کو شائع نہیں کیا اپنے اخبار میں. نہ مرزا صاحب نے اس کو مبالغہ قرار دیا پوری زندگی. انہوں نے تقریباً کوئی 6-7 پوائنٹ لکھے ہیں. اس پوائنٹ کو عمر بھائی اگر مناسب سمجھے تو میں ایک ہی بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ تحریرات کے اندر جو دجل اور جھوٹ اور قرآن کے اوپر جو جھوٹ بولا نا اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا. اب ثناء اللہ امرتسری نے تو ایسا لکھنا نہیں تھا کہ میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ تو قبولیت کی بات یا مبالغہ کی بات ہی نہیں تھی. اور ایک اور بات کہ ثناء اللہ امرتسری نے یہ کہا کہ یہ جو اشتہار ہے یہاں پہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ الہام کے بنا پر میں شائع نہیں کر رہا بلکہ یہ محض خدا سے دعا ہے. تو انہوں نے ایکسپوز کیا کہ فار ایگزامپل کل کو مرزائی یہ کہہ دیں گے اچھا یہ کام ہو گیا، مرزا صاحب مر گئے ہیں، تو وہ کون سا خدا سے الہام پا کے لکھا ہوا تھا. اس سے بھی ان کا جو دجل ہے وہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے خالصتاً دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ اشتہار جو ہے وہ محض دعا ہے، الہام نہیں. تو یہ خلاصتاً جو ہے نا وہ دعا بن جاتی ہے جس کو آج مرزائی ماننے سے انکاری ہے. عامر بھائی میں جو پہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اگر یوسف بھائی موجود ہے تو وہ کریں بات. ہم انتظار کریں گے نذیر صاحب کا. ججا صاحب آپ بہت کچھ تو لکھ رہے ہیں، مگر میں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مسیح موعود نے کہا کیا تھا اور ثناء اللہ امرتسری نے کیا کہا تھا. تو اسی کو دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. باقی عثمان بھائی کہتے ہیں کہ جی وہ مناسب سمجھیں گے تو بتائیں گے. بھائی انہوں نے اپنے سارے تیر شو کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہوئی کہ میں بعد میں فائر کروں گا. تو بات ٹھیک بھی ہے. ہاں، آپ یہ اشتہار آپ کیوں نہیں آ کے پڑھ دیتے ججا صاحب؟ تو اشتہار جو ججا صاحب جہاں تک مجھے نظر آیا ہے نا، وہ جو کچھ پڑھ کے بتا رہے تھے نذیر صاحب، اس میں تو یہی ہے کہ یہ ایک دعا کی جا رہی ہے امرتسری صاحب کے خلاف، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
अब तो ये जज साहब, ये तो जाहिर है कि सुनाला अमृतसरी साहब का जो जवाब है वो कुछ भी हो, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक तरफा दुआ थी और ये कह दिया गया था कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, नतीजा अमृतसरी के जवाब में नहीं है। मुझे तो अब तक ये समझ आई है, अगर कोई और समझ आ गया तो फिर देखेंगे। अच्छा जी, करा जी बयान में। हाँ जी, अमृतसरी साहब का जवाब दसो। हाँ जी, पहली गल का मैनूं पता लग गया। हाँ जी, वो बात ये है कि ये इश्तिहार छपा 15 अप्रैल 1907 को मिर्ज़ा साहब ने अपने अखबार अल हकम वगैरह में छपाया, अल बदर में छपाया। तो इसके जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 26 अप्रैल 1907 को इसके जवाब में इश्तिहार के ऊपर लाइनें लगा लगा के, पॉइंट्स लगा लगा के 7 बातें लिखी हैं। और वो 7 बातें इस तरह से हैं कि इनका पहले नंबर पर तो छोटा सा बैकग्राउंड मैं बयान करता हूं कि वो ये है कि ये बात शुरू हुई थी मार्च के महीने में। मार्च के महीने में मिर्ज़ा साहब ने एक किताब लिखी थी कादियान के आर्या और हम। उसके बारे में अल हकम अखबार में इश्तिहार दिया था कि हज़रत मसीह मऊद ने कादियान के आर्यों के साथ मुबाहला किया है। किताब छापी है कादियान के आर्या और हम, और मुबाहला कर दिया है और उनको कहा है लाला शर्मपत और भीमसेन वगैरह को कि आओ, तुम ये कहते हो लेखराम को कि मेरी सारी पेशगोइयाँ झूठी, मेरे सारे इल्हाम बनावटी हैं, तो तुम कसम खाओ। हिंदुओं को कहा कि तुम कसम खाओ कि क्या तुमने आज तक मेरा कोई इल्हाम सच्चा होता हुआ नहीं देखा? तुम कहते हो सारे झूठे हैं, तुम कसम खाओ। साथ ही ये जो अल हकम में खबर छापी कि हमने कादियान के आर्यों को चैलेंज किया है और ये किताब छापी है, साथ ही लिख दिया कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को भी हमारी तरफ से चैलेंज है कि वो कादियान के आर्या उनके दोस्त हैं, वो उनको आमादा करें कसम पर, और खुद भी कसम खाएं कि क्या उन्होंने मिर्ज़ा साहब का कोई इल्हाम सच्चा होता हुआ नहीं देखा। हाँ, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि भाई मैं अपने नफ्स का ज़िम्मेदार हूँ, कादियान के आर्या मेरे वाकफ़ हैं, दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उनको अकीदे के बारे में मातते नहीं पहले मुसलमान बना लूँगा। तो उनका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे कहा है कि तुम कसम खा के बताओ कि मिर्ज़ा साहब के सारे इल्हाम झूठे हैं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं कसम खा कर कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब के सारे इल्हाम झूठे और बनावटी हैं, कोई भी सच्चा साबित नहीं हुआ। तुम बताओ कि ये कसम मैंने कहाँ पर खानी है? लुधियाने में खानी है, बटाले में खानी है, अमृतसर में खानी है, कादियान में आके खानी है, कहाँ खानी है, और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा पहले छाप दो कि अगर मेरी ये कसम जो मैं खाऊंगा सच्ची होगी तो क्या नतीजा आएगा, झूठी होगी तो क्या नतीजा आएगा। मैं कसम खा दूं, उसके बाद क्या होगा क्या? आपके ख्याल के मुताबिक तो मैं झूठी कसम खाने जा रहा हूं ना, तो मैं कसम खाने लगा हूं। बताएं कि इसका नतीजा क्या होगा? क्या मेरी मज मर जाएगी, मेरी लात टूट जाएगी, मेरी बांह टूट जाएगी? जवाब में मिर्जाइयों ने कहा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का मोबाइल का चैलेंज कबूल कर लिया गया है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है मोबाइल का। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इन मिर्जाइयों को क्या पता कि ये क्या होती है। मैंने कब तुम्हें मोबाइल का चैलेंज किया है? तुमने कसम खाने के लिए कहा, मैंने कहा मैं कसम खाने के लिए तैयार। मोबाइल का तो मैंने कहा ही नहीं है। तो मैं फिर कहता हूं कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बता दो कि सच्ची होने की सूरत में क्या होगा, कसम झूठी होने की सूरत में क्या होगा। इन्होंने कहा नहीं, हम किताब लिखने लगे हकीकतुल वही, तो उसके बाद हम आपसे मुबाहला कर लेंगे, अगर करना हुआ तो आप हकीकतुल वही पढ़ें और उसके बाद इश्तिहार हम साथ ही छाप देंगे, तो आपके साथ मुबाहला कर लेंगे। ठीक, हकीकतुल वही छपी है 15 मई को, ये इश्तिहार छप गया 15 अप्रैल को।
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के नाम का ये इश्तिहार छाप के मिर्जा साहब ने इसमें ये बात लिख दी, हालांकि उनको टाइम दिया गया कि आपके साथ मुबाहला होगा 15 मई के बाद, यानी हकीकतुल वही छपने के बाद। आप हकीकतुल वही किताब पढ़ें, उसमें हम अपने निशानात लिख रहे हैं, वो पढ़ के फिर आप कहना कि आप मुबाहला करना चाहते हैं, फिर कर लेना। इन्होंने ये इश्तिहार छाप दिया। अमर भाई, जिस तरह आप जवाब बयान करने लगा हूँ। अब जब इन्होंने ये इश्तिहार छापा तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि भाई पहली बात तो ये साथ में बयान करने लगा। उन्होंने पहली बात तो ये है कि तुमने कसम खाने के लिए मुझे कहा था, फिर उसको मोबाइल की शक्ल दी और वो कह दिया कि हकीकतुल वही छपने के बाद होगा। तो ये आपने क्या छापा है? ये इश्तिहार किस लिए छापा? इसका मतलब क्या है? क्या इससे कहना चाहते हो? इसमें जो आपने दुआ मांगी है अल्लाह ताला से, उसमें आपने मक्कर और फरेब से काम लिया है। इतनी हेरा फेरियां। पहला कहा कि ये शैतान की आंत से लंबी तहरीर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मुझे मिली है। शैतान की आंत से लंबी तहरीर, उसमें वो क्या है? वो मक्कर और फरेब का एक जाला है कि ये मौत या मौत जैसे किसी अजाब में मुबतला कर दे, या अल्लाह फैसला कर दे, या अल्लाह तौन हो जाए, हैजा हो जाए। ये भी इसमें लिखा हुआ है कि मौत कैसे हो, हम में से जो झूठा है उसकी सच्चे की जिंदगी में मौत छुरी से ना हो, बंदूक से ना हो, गोली से ना हो, बल्कि कैसे हो? ताउन से हो जाए, हैजे से हो जाए, या किसी मौलक बीमारी से हो जाए। तो उन्होंने कहा ये इसने इसलिए ये हेरा फेरी की हैं कि आजकल ताउन फैली हुई है हिंदुस्तान में। 1907 में बड़ी जोर की ताउन फैली हुई थी, हर दूसरे घर से चारपाई उठ रही थी, कोई ये मर गया, वो मर गया, हर गांव में जनाजे हो रहे थे ताउन के। मिर्जा साहब ने समझा कि शायद कोई इन ताउन ही हो जाएगी, तो ये मर गया तो मेरे तो पिछू चांदी है, तो जो मैं मर गया तो अब्दुल्ला बिन सबार सानू केड़ा किसी पिछू पूछना आमना से। बहरहाल उन्होंने कहा एक तो इस बंदे ने ये मकर और फरेब किया है, सीधी दुआ नहीं की, गोल मोल दुआ की है, या मौत दे दे या मौत जैसी कोई बीमारी आफत भेज दे। दूसरा ये कि ताउन और हैजा, इसलिए इसमें मेंशन किया कि ताउन आजकल फैला हुआ है, तो हो सकता है मैं ताउन से मार जाऊं, हो सकता है मिर्जा साहब मार के किसी ने पूछना कोई नहीं, मेरे ना कोई अदा कटा, मिर्जा साहब कहना पहले मेरी गल पूरी होगी। ये हेरा फेरियां की हुई हैं। फिर उसमें यह भी कहा हुआ है कि ये इल्हाम या वही की बिना पर नहीं। क्यों भाई? आप तो मुल्हिम हो, आप तो कहते हो कि मैं कोई गलत बात लिखने लगूं तो मुझे अल्लाह ताला रोक देता है। आप तो कहते हो कि रूहुल कुदस की कुदसियत हर लहजा मेरे अंदर काम करती रहती है। आप तो कहते हो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, इसका मिस्दाक मैं हूं, मैं अल्लाह की वही के बगैर बोलता ही नहीं। अब ये क्यों ये बात आपने लिखी है कि वही और इल्हाम की बिना पर पेशगोई नहीं है, बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने अल्लाह से फैसला चाहा? क्यों? कि दुआ ना कबूल हुई तो कह देना नहीं कबूल हुई। नबियों की भी नहीं होती कई दफा। ये अभी आपने मक्कर और फरेब किया है। इस तरह के उन्होंने 7 पॉइंट्स जो मैंने बयान किए हैं लिखकर उन्होंने कहा कि ये उस मामले में, जो मामला हमारे दरमियान शुरू हुआ है, उस मामले में ये फैसला कुन नहीं हो सकती। मैं तैयार हूं कसम खाने के लिए, आज भी तैयार हूं। मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि बताओ कि मेरी कसम सच्ची होगी तो क्या होगा, झूठी साबित हुई तो क्या होगा, ये बता दो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। ये इश्तिहार अगर उस सिलसिले में आपने छापा है जो कसम आप मुझसे मांग रहे थे, तो ये इश्तिहार किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। आपने मुझसे कसम मांगी, मैं कसम देनी है। मैंने हिम्मत है तो बाहर निकलो, ऐलान करो, इश्तिहार छापो, फलान जगह लोगों इकट्ठे हो, जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी कसम खाएगा, अगर इसकी कसम झूठी साबित हुई तो इसकी मज मर जाएगी, इसकी गां मर जाएगी, इसकी छत टैप होगी। अगर इसकी कसम सच्ची हुई तो ये हो जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा। कुछ ऐलान करो, इश्तिहार छापो, मैं आके कसम खाता हूँ। ये बातें सारी लिखकर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने वो जवाब दिया था 26 अप्रैल को। अब मिर्जाई क्या कहते हैं, अब सुनना जी। ये है वजह इस मुनाजरे के मुनक्कद होने की। मिर्जाई कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कैसा जाहिल आदमी है, ये कहता है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में हमेशा मरता है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये बोंगी है। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा ये कैसी बोंगी है, दावा मसीह मऊद है, और कहता है कि झूठा से, हालांकि कई दफा सच्चा पहले फोत हो जाता है, झूठा बाद में फोत होता है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम सच्चे थे, सारे सच्चों के सरदार थे, आप फोत हो गए, मुसलमा कज़ाब झूठा मदई नबूवत उस वक्त जिंदा रहा। तो ऐसे हो सकता है कि सच्चा झूठे की जिंदगी में फोत हो जाए या झूठा सच्चे की जिंदगी में फोत हो जाए, जिस तरह आपने कहा। तो ये कोई पैरामीटर अल्लाह ताला ने कोई बयान नहीं किया कुरान में, बल्कि कुरान में तो झूठों को लंबी उम्र मिलने का भी मौजूद है, दलाइल मौजूद हैं। और उन्होंने 5-7 आयतें भी लिखी कुरान की
कि फलां आयत का ये मतलब है, फलां आयत का ये मतलब है, कि कई दफ़ा झूठे को अल्लाह ताला लंबी उम्र देता है। अब मिर्ज़ाई ये कहते हैं कि जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये जवाब दिया तो हजरत साहब ने फरमाया, अच्छा तुम लंबी उम्र चाहते हो, लो फिर तुम्हें आज से लंबी उम्र दी जाती है, लो फिर तुम मुसलमा कज़ाब की तरह तुम जिंदा रहोगे, हम फौत हो जाएंगे। ये बात कही एक मिर्ज़ाई ने, साथ राजा ताउल मनान साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि तुम अगर लंबी उम्र चाहते हो तो तुम्हें लंबी उम्र दी जाती है, हम तुमसे पहले फौत होंगे, तुम हमारे बाद मरोगे, ये बात मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की दिखा दो या इस मफहूम की इबारत दिखा दो, मुंह मांगा इनाम मैं आपको दूंगा, मुंह मांगा इनाम, $10,000, $20,000, $50,000। झूठ बोलते हो दिन ब दिन यहाँ बैठ के हमारे सामने। राजा ताल मनान साहब ने कहा, अमर साहब होश करो, तुसी फड़िया जाना है। मैं भी गल पढ़ी है, मैं क्या राजा साहब तुसी होश फड़ो, मैं 960 यूरो की ऐनक लवाई है, ए तुहाडा लिटरेचर पढ़ पढ़ के अन्ना हो गया मैं, तुसी होश फड़ो, ये गल मिर्जा साहब नहीं लिखी, उन्हें क्या लिखी है, मैं क्या ले आओ, अगर लिखी होएगी तो मैं देंगा ना जुर्माना, मैं तुहाडे को तो कुछ नहीं मंगया, मैं इनाम देना तुहानू मुंह मंगया, $10,000, $20,000, $50,000, ले आओ सबूत। अच्छा जी अगले हफ्ते ले आवांगे जी, अगले हफ्ते ले आवांगे। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, 4 हफ्ते तो भी ज्यादा गुजर गए। राजा ताल मनान साहब एक दिन साडी बराड़ ते तशरीफ लियाए ने ते कहन लगे कि ओ मैं हवाला, मैं कुछ समझ मैनू हो रही सी, मैनू कोई सही समझ नहीं सी तुहाडी गल आई, ते मैं वो कोई होर समझदा रहा, ते फिर इंज हो गया ते हो गया। मैं क्या अच्छा फिर हुण मैं क्या, मैं तो तुहानू उत्थे बार बार कहा है कि चंगी तरह इनू चैक कर लो, जिहड़ी तुसीं गल पे करदे हो, इस तरह की गल मिर्जा साहब नहीं लिखी है, तुसां आख्या लिखी है, नहीं इस तरह की कोई नहीं लिखी है। मैं क्या इस तरह की लिखी हुंदी ना तो भाई मैं क्यों इन्ना रौला पांदा कि यह फैसला जिहड़ा है, ये फैसला हो चुका 26 मई 1908 ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ। आई विल बी मोर हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक यू अबाउट दिस मैटर। मैं कहा जी ठीक है, मैनू कबूल है, मैं तुहाडा चैलेंज कबूल कर लिया, दस्तखत करना वा, आखिरी फैसला इश्तिहार ते मेरी तुहाडी तफसीली गुफ्तगू होएगी। ए दिन तय हो गया 29 जून 2025। ए वजह जे तय होने दी कि इन्हां नूं हवाला ना लभा, ते मैं थोड़ा जिहा उत्ते इन्हां नूं दबाण दी कोशिश की ते इन्हां ने आख्या कि इहदे ते असीं पूरी गुफ्तगू कर लैने। मैं क्या कर लो बिस्मिल्लाह, ए जी वजह, क्योंकि इन्होंने एक गलत बयानी की थी। मिर्जा साहब ने कदे भी नहीं आख्या कि बई तू ठीक है, ये गल आखी है कि झूठा सच्चे की जिंदगी च नहीं मरदा ते सच्चा मर जाता है, तो लै फिर तू हुण जिंदा रहेगा तो असीं मर जाएंगे। नहीं आख्या मिर्जा साहब। मिर्जा साहब तो बोले ही नहीं। मिर्जा साहब 11 महीने इस इश्तिहार नूं छापण तो बाद कुछ भी नहीं बोले, इंतजार करते रहे। अब मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मरेगा, हम लोगों को बताएंगे। अगर हम मर गए तो खसमान खान पिछू मरजाइयां की मर्जी जो मर्जी कर लैन। लेकिन मरजाइयां की कीता, मिर्जा साहब मर गए 26 मई 1908 ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। मिर्जा साहब कुछ भी नहीं बोले। 11 महीने 10 दिन इंतजार करते रहे कि अल्लाह ताला का फैसला अब जो भी आए, क्योंकि फैसला तो खुदा के हाथ में दे दिया है, जो भी फैसला आए। हत्ता कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 2 दफा इस इश्तिहार को पेश किया। एक दफा तब अक्टूबर में जब उनका बच्चा फौत हुआ मुबारक अहमद, कि लो जी ये इश्तिहार का नतीजा आ गया। दूसरी दफा फिर 15 अप्रैल 1908 को जब 1 साल गुजर गया, फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये इश्तिहार दोबारा मेंशन करके अपने अखबार अहल-हदीस अमृतसर में लिखा, ओ मिर्जाइयों किस इंतजार में हो, ओ मिर्जाइयों क्या इंतजार कर रहे हो, साल गुजर गया है, तुम्हारे गुरु ने ये इश्तिहार छापा था। ओ मुबाला तो साल का ही होता है ना, ये क्या इश्तिहार इसने छापा था, किस बात के इंतजार में हो। फिर भी नहीं। मिर्जा साहब ने कहा 15 अप्रैल 1908 को भी ये बात सुनकर पढ़कर ना मिर्जाई बोले ना मिर्जा साहब बोले। क्यों? ये तो सारे इंतजार करते रहे कि तुझे चुप बट्टो छड्डो, इनू मारन दो, सनाउल्लाह अमृतसरी नू मारन दो, जड़ियां मारदा पिया, बड़का मारदा पिया, मरना इन नहीं है, ये तो मसीह मऊद ने तो नहीं मरना, उन्हें मरना है, तुम इंतजार करो। ये अपने मरीदां नू तसलियां देंदे रहे। लेकिन 26 मई 1908 ਨੂੰ जिस वेले इजराइल ने आके आख्या कि हुण तैयारी करो, बास तू ऐ दे हुकुम, अपनियां जाना हुण
ਅਖਰਜੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢੋ। ਹੱਥ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁਫਤਰੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓਹੋ, ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਨਾ 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 ਅਸਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਸ ਅਖਬਾਰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਆਣਾ ਜੇ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ तुम्हारी मुझे किसी सूरत कबूल नहीं, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देख कर, मेरे दिल को देख कर, मेरी वफा को देख कर। दिल ते हथ रख के दसो, 2 बारी मौलाना सनाउल अमृतसरी ने अक्तूबर 1907 विच और अप्रैल 1908 विच जदों इस इश्तिहार नूं अपने अखबार छाप के आख्या कि मिर्जाइयों किस बात के इंतजार में हो, मजीद अल्लाह का कौन सा फैसला तुम्हें चाहिए? क्यों नहीं मिर्जाइया ने तो मिर्जा साहब ने जवाब दिता देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था जी। मैं दिल ते हथ रख के कुछ नहीं कह सकता, मैं दिल दा मरीज है, गोलियां खाना है काफी सारियां। अच्छा, इस तरह है कि जो मौलाना अमृतसरी सन उन्होंने मिर्जा साहब की वफात ते क्या ये क्या कि ये नतीजा उस मुबाइले दा सी या उस दुआ दा सी? बिल्कुल, जदों मिर्जा साहब मरे ने 26 मई 1908 ਨੂੰ मौलाना सनाउल अमृतसरी ने फौरन डंडा हथ कर लिया। उन्हें आख्या लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ना इंतजार करो ना इंतजार करो, ले आ गया जे नतीजा, तुसी सारे इंतजार सी ना, ए आया जे नतीजा। किस चीज का नतीजा? 15 अप्रैल 1907 वाले इश्तिहार दा। नहीं उन्होंने ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੁਬਾਇਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਦੁਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਰਕੇ 26 ਮਈ 1908 ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਬਾਇਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ क्यों की थी कि मोबाइल सी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये उनकी जिंदगी में सवाल हुआ था कि मौलाना तुसी दे इनू मोबाइला कह नहीं सकते, तुसी इनू मोबाइला क्यों पे कहंदे हो? जे मोबाइला सी ते तुसां कबूल क्यों ना कीता? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ अबुल वफा मौलाना सनाउल अमृतसरी अल्लाह रहमान ने अपनी जिंदगी दे विच दिता है, खुद अपने कलम नाल लिख के दिता है। ए अबुल वफा मैं तां आखना ए पीड़ बड़ी हुंदी मेरी गल दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अबुल वफा आखना पीड़ बड़ी पैंदी है, तां मैं अबुल वफा ने अपनी जिंदगी च जवाब दिता। उन्होंने आख्या कि मिर्जा कादियानी साहब ने खुद अपनी जिंदगी दे विच इस तरह दियां लोकां दियां दुआवां नू मुबाहिला किया है कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी मेरे साथ मुबाइले के नतीजे में हलाक हो गया, मौलाना इस्माइल अली गढ़ी मेरे साथ मुबाइला करके हलाक हो गया। हालांकि उन्होंने मुबाइला नहीं किया। कितने मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी दा ते मिर्जा कादियानी दा मुबाइला होया? किरे भी नहीं। कितने मौलाना इस्माइल अली गढ़ी दा ते मिर्जा साहब दा मुबाइला होया? किरे भी नहीं। मिर्जा साहब ने क्यों आख्या मेरे नाल मुबाइला करके फौत होए ने दोए? इस गल आख्या कि मिर्जा साहब कहते सी कि जेड़ा बंदा ए दुआ मंगे, या अल्लाह तू मेरा ते उस बंदे दा फैसला कर दे, जेड़ा ए दुआ मंगे वो अल्लाह कोलों यक तरफा दुआ मुबाइला ही कर रहा हुंदा है कि या अल्लाह तू मेरा, वो बंदे दा रब नाल मुबाइला हुंदा है। मिर्जा साहब कहते सी कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मेरे नाल मुबाइला करके ते मौत नूं गले ला लिया। मौलाना इस्माइल अली गढ़ी ने मेरे नाल मुबाइला, कितने मुबाइला, किसी जगह ते आमने सामने तो मुबाइला होया नहीं। उन्होंने एक किताब लिखी मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ का फैसला कर दो। रुको जरा ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਇਲਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਇਲਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਓ ਤਸੱਵੁਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਬਾਇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੀ ਗੇਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਬਾਇਲਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਬਾਇਲਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਇਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਬਾਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਬਾਇਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 29 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਓ। ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਵੇ ਬਈ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੁਹਰਾ ਗਏ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੈਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋता तो हजरत मसीह मऊद ये क्यों कहते अब तुम जो चाहे लिख दो, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਓ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਯਾਦ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਰਾਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਸ ਵੇ ਚਲਦੀ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਵੇ ਚਲਦੀ ਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 29 ਦੀ ਕਿਉਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਬਹਾਨਾ ਪੇ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ।
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਇਸ ਸਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਹੀ 2-3 ਪੰਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਬਾਇਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਵਰਟ 49 ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਦਾ ਥਪਥਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਬੜਾ ਬਾਦਲੀਲ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਤਵੱਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕੁਕੜੋਂ ਕੁੜੋਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹੋ, ਕੁਕੜੋਂ ਕੜੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। ठीक है सर। अस्कानी भाई को पूछ के आवां की हाल चाल है। वक्फा करो भाई सारे, ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੈਸ ਦੂਜੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਲੀ 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 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।